Good morning, dear children. Today we will continue with our chapter 7, Safety and First Aid. Yesterday we discussed about, in the previous classes, we discussed about safety at home, safety in the classroom, and safety on the road. So today we will talk about safety in the playground. Today I am going to tell you about the safety rules for playground. When you are in the playground, what all are the safety rules that you must follow so that you can keep yourselves safe. So first is what? Always play safe games. When you are playing some games, so you should play games which are safe. Do not play rough games like fighting with each other or like wrestling and all such games we shouldn't play, which are rough games and which can hurt us, which can injure us. So always play safe games. Like you can see here, the children, they are playing, okay, they are playing football, okay, so we should play they are playing volleyball, football, okay. Yeah, here this is football, this is volleyball, they are playing volleyball here. And here you can see the children, they are playing football. So you should play always safe games, okay. And now in this pandemic period, it is very necessary to follow social distancing. Whenever you are playing games, follow social distancing, okay. And these are some rough games. You can see here in this picture that they are fighting and also such games we shouldn't play. These are rough games which might hurt you. So always play rough safe games and never play a rough game. Then when you are playing on the swings, when you're going to the swings, okay, so what usually happens that everyone, सबको झूले पे बैठना है लेकिन सब एक साथ तो नहीं बैठ सकते. So you have to wait for your turn always, okay. Whenever you are going to the swings, wait for your turn. टर्न बाय टर्न सबकी बारी आनी चाहिए, ओके. यू कैन काउंट, आप काउंटिंग कर सकते हो कि 30 तक आप करोगे, फिर आप उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा वो 30 झूले लेगा. सो इन दिस वे यू कैन प्ले, यू कैन एन्जॉय ऑन द स्विंग्स. और जब आप वेट कर रहे हो स्विंग्स के पास तो थोड़ी दूरी बना के रखना है अपने आप को, ज़्यादा पास नहीं खड़े होना है या नहीं तो आपको चोट लग सकती है. यू माइट गेट हर्ट. और हमें पुश नहीं करना चाहिए, हमें डू नॉट पुश अदर्स. सो सम rules are there here which you must follow when you are going to the swings. When the swing stops, get off carefully. So जब वो swing रुक जाता है, okay, तभी आपको उतरना चाहिए एकदम ध्यान से. ये ना हो कि झूला रुका नहीं है और आप कूद के उतर जाते हो तो उससे आपको चोट लग सकती है. You might get hurt. Second is wait on the side for your turn. तो जब दूसरे आपके फ्रेंड्स झूले पे बैठे हैं तो आपको थोड़ी दूर साइड में अपनी टर्न के लिए वेट करना चाहिए. एंड डोंट पुश अदर्स, ओके, डोंट पुश ईच अदर, वरना किसी को चोट लग सकती है. यू माइट गेट हर्ट. सो फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स व्हेन यू आर ऑन द स्विंग्स. टेक टर्न्स, ओके, टेकिंग टर्न्स इज़ गुड. हमें हमेशा टर्न बाय टर्न खेले तो इट इज़ वेरी गुड. एवरीवन, सबको चांस मिलेगा, ओके. समटाइम्स इट इज़ माई टर्न टू गो फर्स्ट. सो कभी कभी आपकी बारी आएगी फर्स्ट, कभी दूसरे की बारी आएगी फर्स्ट. सो ऑलवेज टेक टर्न्स. देन देर आर सम प्लेसेस, ओके, लाइक यू कैन सी हियर इन द पिक्चर दैट some children, you see there are bricks रखे हुए हैं, ईंटें रखी हुई हैं और वो उनके ऊपर खेल रहे हैं. कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई उस पे से जंप कर रहा है. सो दिस इज़ रॉन्ग. वी शुड नॉट प्ले नियर द ब्रिक्स. थॉर्नी हेजेस मतलब कि जो कांटे वाली झाड़ियाँ होती है उनके पास भी हमें नहीं खेलना चाहिए. हमें वो कांटे से हमें चोट लग सकती है. और barbed wires क्या होते हैं? या here you can see these are called barbed wires. ये फेंसिंग के लिए लगाई जाती है कई जगह. तो हमें इनके पास नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इनमें जो है बहुत ख़तरनाक शार्प होते हैं और इनसे हमें चोट लग सकती है. वी माइट गेट हर्ट. तो कभी भी हमें जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, हेजेस होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, बार्ब्ड वायर जो ये होती हैं,
और फिर ईंटें वगैरह ऐसे जो जिनसे हमें चोट लग सकती है उनके पास हमें नहीं खेलना चाहिए। ये दिख रहे हैं आपको, दिस आर सम थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियां हैं। ओके, तो इनके पास हमें नहीं खेलना चाहिए। ओके, वी शुड प्ले इन अ सेफ प्लेस जहाँ पे हमें चोट ना लगे, वी मैट नॉट गेट हर्ट। देन वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स। जो भी गेम के रूल्स होते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अगर सभी रूल्स को फॉलो करेंगे तो देर विल बी द गेम विल मूव ऑन स्मूथली, आराम से आपका गेम चलेगा। एंड डू नॉट चीट और आर्ग्यू, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। सो देर विल बी नो फाइट्स एंड देर विल बी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग हर्ट। फिर अगर उसके बाद भी अगर किसी को चोट लग जाती है तो क्या करोगे आप? सो देन वी शुड गिव फर्स्ट एड। ओके, सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? ओके, फर्स्ट एड क्या होता है? सो हम कितना भी ध्यान से खेलते हैं कि भाई चोट ना लगे, लेकिन फिर भी कई बार जो है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ओके, सो दैट आर कॉल्ड, जो हमने थोड़ा सा भी अगर हम केयरलेस हो जाते हैं तो वी कैन हैव मीट विथ एन एक्सीडेंट। सो जब हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी को भी, आपके फ्रेंड को या फिर आप नहीं भी जानते, आप रोड पे जा रहे हो कहीं पर भी और आपने देखा कि किसी को चोट लग गई है, सो व्हाट यू शुड डू? सो वी शुड, अगर हम कर सकते हैं तो हमें फर्स्ट एड, वी शुड हेल्प देम बाय गिविंग फर्स्ट एड। दैट इज़ द, डॉक्टर के पास लेकर जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो हम उनको हेल्प देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, जैसे किसी को खून आ गया है तो हम उसको बैंडेज लगा सकते हैं और उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं या फ़ोन करके डॉक्टर को बुला सकते हैं। सो इन दिस वे जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसको, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज़ द immediate help given to an injured person before the doctor arrives। तो डॉक्टर के आने से पहले जो हम इंजर्ड पर्सन है, जो घायल व्यक्ति है, उसको हम जो हेल्प देते हैं, ओके, जो उसको ट्रीटमेंट देते हैं जो भी, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। सो व्हाट ऑल आर द रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो व्हेन यू आर गिविंग फर्स्ट एड? सो व्हेल गिविंग फर्स्ट एड, सम रूल्स शुड बी फॉलोड। फर्स्ट, हैंडल द सिचुएशन कामली। हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, इंस्टेड हमें शांति से काम सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, कामली। देन सेकेंड इज़ डोंट क्राउड नियर द अराउंड द इंजर्ड। तो जो घायल व्यक्ति है उसके जो है चारों तरफ हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। ओके, उसको थोड़ा खुली हवा उसको मिलनी चाहिए। डोंट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। देन थर्ड इज अलाउ द इंजर्ड पर्सन टू सिट और लाई। अगर वो होश में है, इफ़ द पर्सन इज कॉन्शियस, तो अगर वो बैठ सकता है, सो लेट हिम और हर सिट, उसको बैठने दीजिए या फिर उसको लेटा दीजिए। देन फोर्थ, गिव सम वाटर टू द इंजर्ड इफ़ ही और शी इज़ कॉन्शियस। यह आपको बहुत ध्यान रखना है। जब कोई किसी को चोट लगी है और वो बेहोश हो गया है, ओके, ही इज़ बिकम, ही और शी इज़ अनकॉन्शियस है, बेहोश हो गया है, तो उसको पानी नहीं देना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो पानी जो है उसके सांस की नली में भी जा सकता है और उसकी मौत हो सकती है। तो अगर उसको होश है, इफ़ ही द पर्सन इज़ कॉन्शियस, अगर उसको बेहोश नहीं हुआ है, वो होश में है, तो तभी हमें जो घायल व्यक्ति को पानी देना चाहिए थोड़ा। देन टाइट क्लीन बैंडेज इफ़ ब्लीडिंग। अगर उसको खून आ रहे हैं कहीं पर भी, तो अगर आपके पास कोई साफ बैंडेज है, क्लीन बैंडेज है, तो उसको टाइटली वहाँ पे बांध दीजिए ताकि उसका ब्लीडिंग रुक जाए। और अगर आपके पास है बैंडेज नहीं है, तो अगर आपके पास एक क्लीन हैंकी है, साफ हैंडकरचीफ है, तो आप वो भी बांध सकते हैं ओवर द वुंड। उसको जहाँ पे भी घाव हुआ है या जहाँ चोट लगी है,
आप वहाँ पर एक हैंडकरचीफ, साफ हैंडकरचीफ होना चाहिए, क्लीन हैंडकरचीफ भी बांध सकते हैं और फिर डॉक्टर को बुलाइए या फिर डॉक्टर के पास लेकर जाइए। Then sixth is call for the doctor or take the injured to the hospital. So या तो आप डॉक्टर को बुला लीजिए अगर कंडीशन ऐसी है कि नहीं लेके जा सकते हैं, then call the doctor or you can take the injured to the hospital. Okay. So whenever you see an injured person, जब भी आपको कोई घायल व्यक्ति दिख जाता है और आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है मैं तो कुछ कर नहीं सकता, सो यू व्हाट यू विल डू, यू हैव टू इमीडिएटली इन्फॉर्म एन एल्डर पर्सन, कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है, ओके, आपके घर में जो कोई बड़े हैं आप उनको बताइए, इन्फॉर्म कर दीजिए, सो दैट दे कैन हेल्प द इंजर्ड पर्सन, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ओके, लाइक हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके, द बॉय हैज़ फॉलन डाउन, उसको पैर पे चोट लग रही है, तो कैसे उसको ट्रीटमेंट देंगे, उसको पहले तो घाव को जो है कोई भी एंटीसेप्टिक लिक्विड होते हैं जैसे कि डिटॉल हो गया है, सेवलॉन है, इनको एंटीसेप्टिक लोशन बोला जाता है, तो पहले तो उस घाव को या वुंड को वो एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करना चाहिए, ओके, उसके आसपास के एरिया को, एंड देन यू शुड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए जैसे बीटाडिन है, सॉफ्रामाइसिन है, सो दीज आर सम एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये हमें चोट पे लगानी चाहिए, ओके, लेकिन साफ करने के बाद विथ डिटॉल या सेवलॉन एंटीसेप्टिक लोशंस है। लाइक हियर ऑल्सो यू कैन सी इन द पिक्चर्स, ओके, ये सब जो है फर्स्ट एड दे रहे हैं, ओके, बच्चे को यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर में उसके यू कैन सी कि उसके नीज पे चोट लग गई है तो बैंडेज बांध रहा है। इन द सेकेंड पिक्चर में एक बैंडेड लगा रहा है, लड़की को चोट लग गई है, द गर्ल हैज़ गॉट हर्ट एंड कोई उसके जो है एल्डरली पर्सन उसके बैंडेड लगा रहा है उसके नी पे। एंड इन द थर्ड पिक्चर हाथ पे, आर्म पे चोट लगी हुई है और उसके बैंडेज लगा रहे हैं। सो इन दिस वे वी कैन गिव फर्स्ट एड, और हमारे घर में हमेशा एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए जिसमें कि ज़रूरी चीज़ें जैसे बैंडेज हो गया, सेवलॉन या डिटॉल हो गया, एंटीसेप्टिक लोशन एक होना चाहिए और एक एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए। तो क्या छोटी मोटी चीज़ें जैसे सीजर्स अगर हमें चाहिए, बैंडेड चाहिए हमें, तो ऐसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं और कुछ खाने की टैबलेट्स जैसे मेडिसिन बुखार के लिए नॉर्मल जो होती हैं, दैट ऑल should be there in the first aid kit. So always keep a first aid kit at your home ready. Then we have the India में जो है रेड क्रॉस सोसाइटी है, ओके, सो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इट ट्रीट्स द इंजर्ड पीपल, वो जो घायल व्यक्ति होते हैं उनका इलाज करते हैं, दे ट्रीट द इंजर्ड पर्सन। देन वी विल गो टू द रोड सेफ्टी वीक। तो हमारा जो इंडिया में सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशंस जो है एक पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो है 193 कंट्रीज़ जो ऑलमोस्ट दे हमारे पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज़ हैं 193 कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। तो उनमें जो है यूनाइटेड नेशंस ने जो है 2007 में एक इंडिया में जो है ग्लोबल सेफ्टी वीक चालू किया था, स्टार्टेड द ग्लोबल सेफ्टी वीक, जो रोड सेफ्टी वीक भी बोल सकते हैं हम इसको। और जो फर्स्ट रोड सेफ्टी वीक है इंडिया में, इट वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 23rd to 29th April 2007 में, ओके, द फर्स्ट ग्लोबल सेफ्टी वीक इंडिया में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अप्रैल 2007 में फ्रॉम 23rd to 29th April स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद हर साल हम इंडिया में ग्लोबल सेफ्टी वीक, रोड सेफ्टी वीक मनाते आ रहे हैं और इस साल जो है हम नवंबर में करेंगे, ओके। एंड एवरी ईयर एक थीम होता है इनका ग्लोबल सेफ्टी वीक का, रोड सेफ्टी वीक का। सो दिस ईयर जो है थीम है नो नीड टू स्पीड। इस ईयर जो है द ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो है
उनका थीम है नो नीड टू स्पीड में अपनी लिमिट में रखो, नहीं तो आपको पे करना पड़ेगा पेनल्टी। ओके, गवर्नमेंट जो है ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, अगर हमने जो स्पीड लिमिट को क्रॉस किया है तो वी विल हैव टू पे पेनल्टी पे करनी पड़ती है, स्पेशली जब आप हाईवेज पे हो। ओके, सो दिस रोड सेफ्टी वीक इन इंडिया, इस साल हम 16 to 22 नवंबर को पूरे इंडिया में इट विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, इस साल पूरे इंडिया में ऑन 16 to 22 November we will be observing it as the road safety week. So let us read now. In the playground, what all are the safety rules that you must follow in the playground? Always play safe games, never play a rough game. Then second, wait for your turn on swings. Do not push each other. So always wait for your turn when you are going to the swings. Do not push each other. Third, do not play near thorny hedges or barbed wires. You may get hurt. So we should not play near thorny hedges, कांटेदार झाड़ियों के पास, या फिर barbed wires जो होते हैं उनके पास नहीं खेलना चाहिए. You may get hurt. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, डू नॉट चीट और आर्ग्यू. तो जो गेम के रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए सबको, सो दैट देर विल बी नो आर्ग्यूमेंट्स. डू नॉट चीट. ओके, हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए. देन फर्स्ट एड. व्हाट इज फर्स्ट एड? So sometimes what happens, in spite of being careful, accidents can happen. तो हम कितना भी careful रहते हैं लेकिन फिर भी sometimes accidents होते हैं. First aid is the immediate help given to an injured person before the doctor arrives. So doctor के आने से पहले with the help that is given to an injured person, that is called first aid. While giving first aid, some rules should be followed. तो फर्स्ट एड देते वक्त हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो व्हाट आर दोज रूल्स? नाउ हियर वी विल रीड. ओके, हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि फर्स्ट एड के लिए हमें क्या क्या सामान हमारे पास होना चाहिए. सम पिक्चर्स यू कैन सी. फर्स्ट रूल, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. तो हमें जो है भीड़ नहीं करनी चाहिए इंजर्ड पर्सन के पास. When you see an injured person, immediately inform an elder person. तो जब भी आप कहीं कोई injured person घायल व्यक्ति को देखते हैं तो immediately तुरंत हमें inform करना चाहिए किसी elderly person को, बड़ों को. For a small cut or wound, clean the area with antiseptic lotion like Dettol and apply antiseptic cream over it. तो अगर कहीं छोटा मोटा कट है, कोई छोटा घाव है, तो क्या करेंगे? क्लीन द एरिया विथ एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल या सेवलॉन. एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करेंगे एंड देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बिटाडीन, सोफ्रामाइसिन. ये एंटीसेप्टिक क्रीम होती हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे घायल जो हुआ है व्यक्ति उसकी चोट पे. व्हेन देयर इज ब्लीडिंग, टाई अ क्लीन हैंडकरचीफ ओवर द वुंड एंड इमीडिएटली कॉल अ डॉक्टर. तो अगर कि जो है ब्लीडिंग हो रही है, किसी को ज़्यादा खून आ रहे हैं, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट यू विल डू, या तो आपके पास बैंडेज है तो टाइटली बैंडेज बांध दीजिए, या फिर कोई साफ़ कपड़ा, ओके हैंडकरचीफ है, अगर साफ़ हैंडकरचीफ है तो उसको बांध देना चाहिए टाइटली ताकि वो खून बहना बंद हो जाए. एंड देन इमीडिएटली कॉल द डॉक्टर. डॉक्टर को तुरंत बुलाइए. अगर जल जाता है कोई तो हियर यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड में नीचे जो है पिक्चर दी हुई है बर्नॉल. ओके, दिस इज़ यूज्ड व्हेन कोई जल जाता है, जब आपकी कोई फिंगर या कहीं पर भी जल जाते हैं तो बर्नॉल लगाना चाहिए उस पर. ओके, देन कम टू द फैक्ट बॉक्स. देयर आर 2 पॉइंट्स इन द फैक्ट बॉक्स. The Red Cross Society treats the injured people. So as I showed you already in the slides that the Red Cross Society जो है हमारे इंडिया में वो घायल व्यक्ति का इलाज करते हैं. And then the first global road safety week was observed from 23rd to 29th April 2007
बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने जो है पहली बार फर्स्ट ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 23 to 29 अप्रैल 2007 में ऑब्ज़र्व किया गया था एज द ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, और उसके बाद हर साल इट इज़ ऑब्जर्व्ड एज अ ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, लेकिन डेट चेंज होती रहती है। ओके इस साल जो है नवंबर में सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 16 नवंबर से। ओके दिवाली के बाद फ्रॉम 16 नवंबर वी आर गोइंग टू इट इज़ गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड एज द ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ओके चिल्ड्रन, so yeah, so this year we are going to it is going to be observed as the global road safety week, and the theme is no need to speed. Okay, from 16 to 22 November. So that's all for today children. Thank you very much. Have a nice day. Stay safe.